खुद के 3 डायग्नोस्टिक सेंटर है। But I belong to Imphal. My hometown is Imphal, where the present condition is going on. Actually, the crisis is going on. I don't want to say anything hate, but the thing is that how much longer and longer the people will suffer in our state. The population of all the communities, not only the Maasai, Muslim, Marwari, Punjabi, Kuki, everybody is staying in Manipur. It's a multilingual and multicultural state. And because of this violence, how long the central government will take time to deal with this crisis? We don't understand. India is going for a superpower nation, right? So I don't think the center is actively intervene in our state. It will take only a matter of few days to settle this violence. And why do the innocent life, the innocent victims, these people are losing their lives. And if the terrorists lose their life, they are anti-law. But the civilians are losing the life is not accepted. ये कोई मतलब कि civilians का पैसे से मोलना तोलना कोई acceptance नहीं है। मैं बोलना चाहूँगी कि civilian का life और law and order protect करना ये सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूटी है। दायित्व सेंटर और स्टेट दोनों के ऊपर है। और मान लो कि कोई व्यक्ति, जैसे मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ कि जो लोग बीमार है, मान लो किडनी डायलिसिस, फॉर एवरी डे हु नीड्स इमरजेंसी ड्रग, एवरी डे हु नीड्स monitoring from a doctor in a hospital. How will a poor people, not everybody is rich to fly to Delhi, Guwahati, Calcutta to get the treatment. The basic treatment जो है important, and these should all the facilities should be available in the state. अब वहाँ पे कर्फ्यू रख दिया, सब चीज़ों महंगे हो गए, तो कैसे, how will we deal with it? मतलब this is not acceptable. We are living in a country of democracy. Now our country is the biggest democracy in the whole world, and India is aiming for a superpower, and a small blockade in a national highway can't be lifted. This is not acceptable. So I request the central government as well as the state government to bring peace in Manipur so that the civilians do not suffer. All the communities suffer in this violence, not only one community or two community. All the people, all the community, all the religions suffered from it. The innocents lost their lives, which is not acceptable. And I also want to say the center and the state to pay special attention to the protection of our porous border, which is the real cause of today's violence. The immigrants who are armed cannot come and attack the civilian and the villages, which is unacceptable at any cost. No loss of life is acceptable by, these armed militants who are attacking the villagers. So I request to the government and the center and the state government also to bring peace as soon as possible. Thank you so much. फ्रॉम एयरफोर्स। नमस्कार। मैं ये मैसेज मणिपुरी वालों के लिए नहीं है, स्पेशली मैं हिंदी में बात करना चाहूँगा ताकि ये मैसेज पूरी भारत में हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं उनको पहुँच जाए। आप मीडिया लोग जो जितने चैनल्स लोग हैं इनके माध्यम से। आप लोग जानते हैं मणिपुर 3 मई से बहुत प्रॉब्लम है और उसकी कुछ दिन के बाद मीडिया में चर्चा है। कुकी और मैतेई समुदाय दोनों आपस में लड़ रहा है। मीडिया में आप लोग देखेंगे तो सिर्फ मैतेई और कुकी, जबकि मैं मणिपुर में 33 कम्युनिटीज़ रहते हैं, उसके बाद मैतेई भी है। 33 कम्युनिटीज़ इनको शेड्यूल ट्राइब में गिना गया है और मैतेई को नॉन शेड्यूल ट्राइब स्टेटस एज ऑफ नाउ है। मैतेई में आप एज पर मीडिया, मैं आप लोगों को जितने मीडिया में क्लेरिफाई करता हूँ, मैतेई में आप लोगों ने क्लब किया
मुस्लिम, मैतई मुस्लिम, पांगल। उसको पांगल बोलते हैं, आप जानते हैं। वो भी मैतई की क्लब कर दिया आपने उसमें। उसकी बाद हमारे पास है मैतई हिंदूज, उसकी बाद एक और है मैतई ओरिजिनल धर्म होता है जो सनामई जो फॉलो करता है। इनको भी आप लोग ने हिंदू कल्चर जबरदस्ती थोप दिया कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जबकि वो अलग धर्म है। एंड हिंदू धर्म मानने वाला भी है, जैसे कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं जो सनामई को मानते हैं। एंड हम लोग आपस में शांति से रहते हैं बहुत सालों से। करीब 1800 की आसपास एक महाराजा गरीब निवास, ये इनका पुराना नाम था, आप लोग नहीं समझेगा। वो हिंदू धर्म मानने के बाद गरीब निवास नाम रख दिया और उसने एडॉप्ट किया, तो बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानने लगे। फिर भी मैतई धर्म जो है वो भी मानने वाले हैं साथ साथ में। और ऐसे क्वेश्चन में है, आप लोग आश्चर्य होंगे जान के, जो हिंदू जो है वो सनामई जो है ना वो भी पूजा करते हैं घर में। हर घर में सनामई का एक स्थान होता है। तो ये आपस में मिलजुल के रहता है। मुस्लिम को तो आप जानते ही है। तो आप लोग जो कहते हैं ना, आप लोग नहीं, मतलब मीडिया में जो मैंने जितने भी देखा है, जो हिंसा हुआ है 3 तारीख को, उसके बाद जितने भी मीडिया में आए 10 तक का, तो कुकी लोगों की बात सुना जाता है और अत्याचार हो रहा है, हिंदू अत्याचार हो या मैतई अत्याचार हो रहा है ऐसे। जबकि आप परसेंटेज में देखें तो 28,000 पॉपुलेशन में 24% नागा है, दे आर 100% क्रिश्चियन, 16% कुकी है, दे आर ऑलमोस्ट 99% एज पर मीडिया रिपोर्ट्स क्रिश्चियन है। कुछ जूस भी है और कुछ अलग धर्म भी मानते हैं वो लोग, जहाँ तक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से। जो कुकी का पॉपुलेशन बनता है एज पर इंटरनेट 4,68,000। सिर्फ 6,68,000 जो है वो अपने आप को कह रहा है ट्राइबल, जबकि और भी है। नागा, सिर्फ नागा को गिना जाए तो 24% इनसे ज्यादा है, जबकि इनका असेंबली में, मणिपुर असेंबली में सिर्फ 10 है, जबकि इनके 16% है, 10 सीट है, उसमें खुश नहीं है वो लोग। जबकि नागा का 2 चीफ मिनिस्टर रह चुका है, मुस्लिम के 1 चीफ मिनिस्टर रह चुका है, क्योंकि उनमें सबके साथ चलने का संभावना, इनकी क्षमता है, प्यार है, सबको एक साथ लेके चलते हैं, प्यार दिखाता है, लीडरशिप क्वालिटी से, तब जाके सबका चीफ मिनिस्टर बना। और इनके एक हमेशा रोना रहता है, हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं है, हमने नहीं। अरे आपके पास अगर लीडरशिप क्वालिटी से आप लोगों को प्यार करोगे तो आप अपने आप बना दोगे। ऐसा नहीं कि हम तो हमेशा डिप्राइव रहा, इसलिए हमारे लिए अलग देश, अलग स्टेट चाहिए, हमें चीफ हमें रन करना चाहिए। आपके पास 10 MLAs है, आपके पास अगर डेवलप नहीं हो रहा है तो आपके MLA को सवाल पूछिए। आपके हिल काउंसिल डिस्ट्रिक्ट है, उनसे सवाल पूछिए। ये मैतई से कुछ लेना देना नहीं है। और एक और इनके ये था, मैतई ST डिमांड किया, बहुत सालों से चल रहा है, वो कोर्ट ने एक डिसीजन ले लिया, उसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ। ये हो ही नहीं सकता। अगर आपको कुछ, आपका अधिकार है कुछ मांगना, अगर आप कुछ मांग रहे हो और मैं इसको नहीं मांगूंगा, अगर मांगा तो मैं गलत हूँ कि आप गलत है, तो ये लोग आप समझिए। दूसरा ये मुद्दे पे आती है तो मैं 2-3 चीजें ही बोलना